यूजीआर का काव है तो मेरा। सो आज पीआईएच के लिए किसी ने अगर वॉलंटियर करना है तो बता दें, वरना फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यस मैडम, मैंने करना है। फातिमा। फातिमा। ऑल राइट फातिमा। आपके जी। पास है कोई केस तो हम कर लेते हैं, नहीं मैडम, वरना आप मैं दे आपको दे दें। देती हूँ। जी ऑल मैडम, राइट। दे दें। तो ठीक है। So patient is Primi Gravida and she is 22 years of age, and she has presented at 25 weeks of gestation with blood pressure of 160 by 110. How will you manage her? Madam, patient primary gravida, 22-year of age, presenting with complaint of 22 week with BP 160, 110. Okay, 25 madam. weeks, yeah. 20, 25 week. Okay, madam. Hmm. Okay. First of all, after mutual introduction, confirmation of the give. Madam, short case है structural discussion. नहीं, इसको हम शॉर्ट केस करेंगे। स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं, उसमें हर चीज कवर हो जाएगी। जी मैडम, ठीक है। हम्म। ओके मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन कंफर्मेशन ऑफ द गिवन डिटेल एड्रेस कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क अबाउट द हाउ लॉन्ग हैव इन डायग्नोस hypertension, previously onset and duration before pregnancy has been diagnosed and first time diagnosed. Then I ask about the taking any medication and BP control or not, record available, and compliance on medication, which medication have been taking, and on which BP control. And I ask about the complication of any history, any blurring of vision, blurring of vision, headache, epigastric pain, nausea, vomiting, and body swelling. Then I ask about and previous history, previously have been blood pressure have been checked or not before pregnancy, check or not, any record available. And then I ask any history of renal, cardiac, and SLE, history of SLE. Then I ask about family history, any sister and mother has hypertensive, and any history of preeclampsia, and any history of surgery, and any other medical history, and any smoking history, and smoking and blood group of the patient. Then I ask about the conception, LMP of the patient, sure of date, and either cycle regular and irregular. First trimester, ask dating scan available, on dating scan, any and dating labs available, and any complication on booking tests, any high blood pressure, increased blood pressure, and labs and investigation of labs, any protein urea at the time of booking. And I after this I ask about when movement start, and anormal scan done, and at the time of anormal scan any complication, and at 20-week blood pressure have been checked, and if record available. And then I ask about any history of PV leaking, leaking, bleeding, any discharge. And I ask about the tummy size according to gestation, feeling of any gestation. And then I ask about any other complication, at the present time fetal movement okay, and any other complication. After this I examine, I ask now any other complication, headache, blurring of vision, epigastric pain, nausea, vomiting, and swelling. And then I examine the patient, general physical examination, BMI of the patient. Uh, Patient is teenage age 22 year, and BMI of the patient, and other now present time vitals, BP check, and pulmonary edema check, the systemic examination, and specifically pulmonary edema, sacral edema, and pedal edema. Then I check the reflexes colonus. After this I examine the obstetric examination, inspection, and after inspection some inspect palpate the some physiofundal height according to gestation, and live presentation, and auscultate the fetal heart rate, and fetal heart rate, and any abdominal palpable contraction present. After this I go to investigation, complete blood count with date and time for hemoglobin, platelet, and TLC, blood group with RH factor, and OGTT, fasting, and 1 hour postprandial, and urine complete examination for protein, glucose, nitrate, and pus cells, RFTs, LFTs, FTs, uric acid,
After this specific investigation, dating scan, anormal scan, and dating scan, anormal scan, and after this BP record available for last 24 hours BP record available, and treatment sheet available. I went treatment sheet if or recent scan. मैडम आप फाइंडिंग देंगी? गुड। सो ओवरऑल मैंने आपको इसलिए बोलने दिया क्योंकि मुझे था कि हम थोड़ा सा इसको इस तरह कर लें कि एक दफा आप पहले पूरा प्रेजेंट कर लो और उसको और बेहतर ओके मैं कैसे कर लूँ, बिकॉज यू वर डूइंग जी गुड मैडम। एक्चुअली। आप तैयारी अच्छी करके आए हो, लेकिन वही चीज है ना कि इसको और अच्छा कैसे किया जाए। जी मैडम। आपकी तैयारी ऐसी है कि अगर इंशाल्लाह आपका मैनेजमेंट भी अच्छी होती है तो आपकी तैयारी कुछ 65% वाली है, नॉट 70% आई वुड से। इसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हम और कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लेट यू नो। नंबर वन। नंबर टू ये कि थोड़ी सी स्पीड तेज थी। थोड़े ओके मेडिकल टर्म्स बहुत यूज कर रहे थे, स्पेशली हिस्ट्री। आपसे ही मैनेजमेंट भी कर लेते हैं और फिर मैं इसकी जी। ओवरऑल करेक्शन कर दूंगी, ठीक है? बिकॉज आई वांट टू ओके सी कि इस तरह की हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद आप, एक्सक्यूज मी, मैनेजमेंट किस तरह की करो करते हो, बिकॉज आपकी तैयारी ठीक लग रही है इस केस के लिए। सो मुझे आप ये बताओ कि सो अब आप अगर मुझे इन्वेस्टिगेशंस आप मेरे से मांगो एक एक करके। सीबीसी में हम एचबी की कर लेते हैं 11, और प्लेटलेट्स आर नॉर्मल, टीएलसी इज फाइन, व्हाट एल्स डू यू वांट? आपने कहा यूरिन। वेल, यूरिन एल्ब्यूमिन में आपको +2 दूंगी, राइट? ओके। और मैडम आर एफ और क्या टीज एल चाहिए? एफ टी एएफटी नॉर्मल, आरएफटीज आर नॉर्मल। और क्या चाहिए? यूरिक सीरम एसिड। यूरिक एसिड भी नॉर्मल है अभी इसका, वो नॉर्मल ओके है। और ओके मैडम ओ जी टी टी फास्टिंग एंड 1 hour पोस्ट पीरियड ओ जी टी टी। मैडम आवाज ओजीटीटी आ रही? इसका हुआ नहीं हुआ, रैंडम ब्लड शुगर हुई हुई है 92। हाँ, ओके मैडम। ओजीटीटी हुआ नहीं हुआ, रैंडम ब्लड शुगर हुई हुई है 92। ओके मैडम। मैडम डेटिंग स्कैन फॉर क्रोनिसिटी एंड क्राउन रैम्प लेंथ। हाँ, वो अवेलेबल नहीं है अभी, रिसेंट स्कैन है, उसके अकॉर्डिंगली 25 वीक्स के पैरामीटर्स हैं। ओके मैडम। मैडम लाइकर एस्टिमेटेड फीटल वेट एंड प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। मैडम लाइकर ठीक है। वो सारा अभी नॉर्मल है। ओके मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम मैनेजमेंट स्टार्ट करूँ? हाँ जी, वो भी नॉर्मल है। एएफआ इसका 12 है। ओके जी ओके करें। मैडम। मैनेजमेंट बता दें, फिर हम इसको ओके फर्दर डिस्कस करते हैं। जी फातिमा। okay madam. First of all, I consult the patient about the diagnosis. This is primary gravida with 25 week with preeclampsia, severe hypertension with urine +2. I consult the patient about the diagnosis, and I ask about the fetal maternal risk, fetal complication, increased risk, IUD, IUGR, preterm delivery, and maternal complication. I tell the maternal complication increase is preeclampsia 10 to 25%. It increases preeclampsia eclampsia 15 to 25%. Placental abruption and serious cerebrovenous accident in complication, and this is high risk pregnancy for because BP is one more than 160 110. I admit the patient after counseling and tell the diagnosis, and I involve multidisciplinary team, anesthetic, an obstetrician, neonatologist, and a physician. After admission of the patient, I monitor maternal monitoring and fetal monitoring. For maternal monitoring, after I monitor the vitals every 15 minutes, 15 to minutes. I give IV labetalol first 20 gram, and then after this I give another shot 40 gram, and other is 80 gram after BP controlling. Every 15 minutes when BP control less, my aim is to 135/85 when BP control. After this monitor the BP after 4 hourly, and after this I maternal monitoring maternal vitals.
and I sent labs daily basis. I sent lab urine complete for any other if urine for protein, if maternal condition deteriorate, and I sent labs RFTs, LFTs, and LFTs, CBC, three times weekly, and for fetus monitoring, I check the any for fetal kick count and auscultate fetal heart rate daily. When BP control and patient stable, I discharge the patient with red flag sign. I ask patient to record BP record on home, and check the check every then come with the BP record two times per week, and on each or and then I ask about the complication, if any headache, blurring of vision, epigastric pain, and any swelling, then came with in emergency. After this and each visit, I check BP, urine for albumin, and monitor the RFTs, LFTs, and uric acid two times per week. My aim to and I perform Doppler scan two to four times per week, and growth scan. My aim is to near term 30 at 36 week all are okay. Then I discuss the mode of delivery, time of delivery, and any other complication I discuss. And my aim is to deliver if all things okay, Doppler okay, growth scan okay. My aim to deliver at 37 week. At the time of delivery, I check the pelvic assessment. वेरी गुड। First of all, ठीक है, pelvic ये baby इस पे हम बात करते हैं डिलीवरी और गुड फातिमा, डिलीवरी और पोस्टमार्टम पे हम बात करते हैं। सो ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी गुड एक्चुअली। Thank आप you. थोड़ा सा तेज बोल रहे थे बट यू वर कवरिंग एवरीथिंग विच इज ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। Thank you, madam. क्योंकि आप तेज बोल रहे थे इसलिए शायद बहुत सारे लोगों ने वो चीजें उस सीक्वेंस में मिस की हो, तो आई विल डेफिनेटली रिपीट। बट ऑब्वियसली बहुत छोटी छोटी बीच में से कहते हैं ना, बहुत बारीकी जी, में जाके अगर मिस्टेक निकालें तो वो मिस्टेक्स थी, जैसे कि आप फीटल चलो मॉनिटरिंग बताएं। किस तरह से करोगे, या जैसे जी, आप लैब्स कितने फ्रीक्वेंटली इस पेशेंट में रिपीट करोगे, और उसके अलावा ये कि आप या ब्लड प्रेशर आपने कितने फ्रीक्वेंटली उसका चेक करना है, वो सारी चीजें। लेकिन अगेन वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उतनी छोटी माइन्यूट मिस्टेक से यू विल नॉट फेल, बट ये है कि उस पे अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा पहले ही बुरे मूड से बैठे हो तो वो उस चीज को पकड़ के अगर लंबा लेके जाना चाहें तो आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करो, इतना अच्छा आप बता रहे हो तो वो भी मिस्टेक्स कवर हो जाए, जी क्योंकि मैडम। थ्योरेटिकली ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी करेक्ट। अपेरेंटली सुनने में बाकी लोगों के लिए भी मैं बताऊंगी कि बहुत सारों को लगता है कि PIH है, हम बोल देंगे डेली मॉनिटरिंग बीपी की इस तरीके से, या लैब्स हम इतने फ्रीक्वेंटली करा लेंगे या ये वो। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। whenever you are talking about PIH या प्री एक्लेम्पशिया, तो जिस तरह से गाइडलाइन में, नाइस गाइडलाइन में हमें दिया हुआ है वो 4 5 6 क्राइटेरिया, व्हेन आर यू गोइंग टू, उसमें थोड़ा सा आप ये भी मिस करके फातिमा कि if you are admitting the patient, why you admitting etc, वो सारा मैं भी आपको शुरू से बताती हूँ। सो वो 5 6 क्राइटेरिया कि आपने एडमिट करना है, ट्रीटमेंट कब शुरू करनी है, टारगेट ब्लड प्रेशर क्या है, आपने कितने फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल में होते हुए बीपी चेक करना है, या घर भेज के पेशेंट को कितना फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसके लैब्स कितने फ्रीक्वेंटली कराना है, यूरिन एल्ब्यूमिन इन स्पेसिफिक कितना फ्रीक्वेंटली कराना है, और फीटल मॉनिटरिंग कैसे करनी है। तो ये 5 6 जो क्राइटेरिया है ये हर एक के लिए डिफरेंट है। विदाउट प्री एक्लेम्पशिया हाइपरटेंशन एंड सिवियर हाइपरटेंशन, विद प्री एक्लेम्पशिया हाइपरटेंशन एंड सिवियर हाइपरटेंशन। तो ये जब जो लेटेस्ट जो भी नाइस की गाइडलाइन है PIH से रिलेटेड, इसमें ये सारा क्राइटेरिया आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आपने कब क्या करा, ताकि जब आप वाइवा दोगे तो इस पे ही तो सारी बहस होती है कि अब पेशेंट का आपने कितने फ्रीक्वेंटली क्या कराना है, इफ यू आर एडमिटिंग हर व्हाई यू एडमिटिंग हर, इफ यू आर नॉट एडमिटिंग हर तो घर जाके वो वीक में कितनी दफा अपना BP चेक कराए, या वीक में कितनी दफा लैब्स रिपीट कराए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शुरू से अगर हम शुरू करें टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, अभी हम डिलीवरी इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सो शुरू से हिस्ट्री वाज वेरी गुड, प्रेजेंटेशन वाज आल्सो वेरी गुड। ठीक है, फातिमा का इस तरीके से स्टाइल है वो भी ठीक है, बट आई वुड से कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इस तरह के पेशेंट में, देखो द थिंग इज कि पेशेंट का मैंने आपको ब्लड प्रेशर 160 110 दिया, विच मीन्स दैट शी इज अ केस ऑफ सिवियर हाइपरटेंशन।
तो हिस्ट्री में भी और स्टार्ट से ही यू शुड हैव टेकन हर लाइक दैट कि यू प्रेजेंटेड विद सिवियर ब्लड प्रेशर, आपको इमरजेंसी में रखा गया था उस वक्त, कोई हेड एक, विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, एडीमा या फिट का कंप्लेंट तो नहीं हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें आपको शुरू में ही इस चीज इसलिए, ताकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चले कि पेशेंट हु इज प्रेजेंटिंग विद 160 110, वी नो दैट वो एक इमरजेंसी केस होता है। तो आपने ये करना है कि उस वक्त क्या इमरजेंसी मेजर्स मिले और वो किस हद तक की इमरजेंसी थी, नंबर वन। नंबर टू पे ये कि so you should have started from there। उसके अलावा ठीक है, आपने क्रोनिक हाइपरटेंशन और पीआईएच को रूल आउट कर लिया, और कि उससे पहले का ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड है या नहीं है। उसके बाद आई वुड लाइक टू स्टार्ट टू टेक द एंटीनेटल हिस्ट्री फर्स्ट। आपने शायद कॉजेज ऑफ पीआईएच पहले बोल दी कि एसएलई और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स और वो सारी चीजें, रीनल और वो सब। Instead, I would like to take the antenatal history first because I know that she's at 25 weeks now, presenting with high blood pressure, और probably she is a case of PIH, but फिर भी मैं एक एंटीनेटल हिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड तो भी शुरू नहीं हुआ, वो लेकर कि अब क्या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे थे, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम के 160 110 पहुंचा या पता ही नहीं था एकदम से पहुंचा, और एडिमा का क्या स्टेटस रहा फेस के ऊपर, ये वो। ऑफ कोर्स आप मेडिकल टर्म्स ड्यूरिंग हिस्ट्री नहीं यूज करते, आप पेशेंट की लैंग्वेज में ही प्रेजेंट भी करते हो। सो बेहतर होता है कि आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से ना बोलो, इंस्टेड यू शुड से कि जॉइंट पेन्स है, स्किन लेजन्स है, या कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम या नॉन क्रॉनिक किडनी डिजीज, या वो सब कुछ तो नहीं था। अच्छा, लेकिन आप एंटीनेटल हिस्ट्री के लेने के बाद मैं आई वुड लाइक कि मैं कॉजेज रूल आउट कर लूं कि अब हाइपरटेंशन क्यों है, जो आपने बहुत अच्छी किया। आई डोंट थिंक यू मे रियली मिस्ड एनी कॉज, विच इज वेरी वेरी गुड। तो आपने वो सारी कॉजेज रूल आउट या रिस्क फैक्टर्स रूल आउट कर लिया, और उसके बाद अब इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पीआईएच ऑन प्रेजेंट प्रेगनेंसी विच मे बी इन टर्म्स ऑफ लाइक आईयूजीआर, जैसे कि आपने कहा कि फंडल हाइट या उसको abdominal गर्थ उतनी लग रही है जैसे बढ़नी चाहिए, कोई एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, या एब्रप्शन, या वो सारी चीजें आपने हिस्ट्री में ही रूल आउट करनी है। और उसके बाद अब तक की क्या ट्रीटमेंट है, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट आपने उससे उस वक्त भी पूछ ली कि इमरजेंसी मेजर्स क्या लिए, और ये कि ब्लड प्रेशर की दवाई, ब्लड प्रेशर कितना फ्रीक्वेंटली चेक हो रहा है, इफ शी स्टिल एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, कोई ब्लड बेबी का तो नहीं प्रॉब्लम बताई हुई, और ये सारा कुछ। तो हिस्ट्री का पैटर्न अगर इस हिसाब से हो तो बहुत बेहतर होगा। यानी कि पहले आपने इस केस में तो यू स्टार्ट विद इमरजेंसी मेजर्स बिकॉज इट्स अ केस ऑफ सिवियर हाइपरटेंशन। तो लेकिन अगर अदरवाइज भी हो तो यू वुड डेफिनेटली लाइक टू रूल आउट क्रॉनिक वर्सेस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसके बाद एंटीनेटल हिस्ट्री, उसके बाद कॉजेज रूल आउट कर लो। फिर प्रेजेंटली कोई ट्रीटमेंट या कोई कॉम्प्लिकेशन मैटरनल या फीटल, इस तरीके से अगर आप कर लो, और ट्रीटमेंट अब तक की क्या ली, तो हिस्ट्री आपकी आई थिंक पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। और जिस तरह आई वुड से, जिस तरह फातिमा के फिंगर टिप्स पे सारी बातें थी रिगार्डिंग रिस्क, दिस हैज टू बी लाइक दिस। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो डेफिनेटली बात आगे नहीं जाएगी, बात हिस्ट्री के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी कि कॉजेज क्या थी, क्या नहीं था, क्या रूल आउट, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग, राइट। सो ये करके उसके बाद आपने जब एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है, दैट्स ओके, आपने क्विकली जरा किया, बट आई लाइक कि आपने फोकस्ड किया, बट आई डोंट थिंक यू रियली मिस्ड एनीथिंग। बट अगेन अगर रिपीट करें तो इसके अंदर पल्स, रेडियो रेडियल, रेडियो फेमरल डिले भी देखना, देख लें तो बेहतर है। उसके अलावा यस, ब्लड प्रेशर आप मेजर करोगे, आई वुड लाइक टू सी एडीमा, एंड देन डेफिनेटली रीनल ब्लूई ब्रूई और वो सारा कुछ रिफ्लेक्सेस। But at the same time, because it is a cardiovascular disease, so there is no harm in checking for JVP also. इसलिए क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ऑफ कोर्स कार्डियोवास्कुलर तो है ही, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, बट अगेन बट साथ में एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इसके अंदर अगर आप कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन पे भी थोड़ा सा एम्फोसाइज करते हो तो वो गलत नहीं। अच्छा, फिर आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद रिफ्लेक्सेस और ब्रूई, पीटल और सेक्रल लीमा, उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे मैं कहूंगी कि आप बहुत तेज बेशक ना भी बोलो, बल्कि ऑफ कोर्स स्टेप वाइज भी बोलो तो बहुत बेहतर है। फरत, आप काइंडली हैंड रेस करके बोल दो, बिकॉज इतना लंबा ना ड्यूरिंग क्लास नहीं पढ़ा जा सकता, तो इट्स बेटर इफ यू वांट टू कमेंट और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप हैंड रेस करके पूछ लो, तो वो साथ ऐड हो जाती है बात। जिसने भी कुछ पूछना है वो इन बिटवीन भी बेशक पूछ ले।
सो फिर जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आप इंस्पेक्शन एंड देन पैल्पेशन के अंदर आप इंस्पेक्शन में वी ऑल नो कि आपने जस्ट मिनट इंस्पेक्शन के अंदर भी ऑल नो कि हम उसके स्कार मार्क्स ट्राया और हर्नियल ऑरिफिसेस और प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन वो सारा देखेंगे एंड देन वी चेक फॉर द विस्ट्रोमेगाली एंड देन वी डू द सुपरफिशियल एंड डीप palpation. Superficial palpation के अंदर you check for the fundal height and then you check for the lie and presentation of the baby or amount of liquor and palpable contractions, and always remember not to forget to comment on the abruption also, because abruption is also complication of eclampsia or preeclampsia or even hypertension. फिर आप उसकी ऑस्कल्टेशन करोगे जी फरत। फरत ने हैंड रेज किया है जी। जी, मैं पूछना चाही थी कि यहाँ पे हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की कोई है यहाँ, यानी कि हम करवा सकते हैं अभी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 25 वीक्स है ये। अह इस वक्त तो नहीं करा सकते, 20 वीक्स पे होता है। व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट एनोमली स्कैन, इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड एंड एडेड पॉइंट इफ यू आस्क फॉर द यूट्राइन आर्टरी डॉपलर ऑल्सो कि उस वक्त हुआ था या नहीं। अगर नहीं भी हुआ था तो इट्स ओके बिकॉज शी इज प्राइमरी ग्रेविडा। हाउएवर इफ देयर इज अ पेशेंट हु हैज पीआईएच प्रीवियसली, तो उसके अंदर तो फिर बेहतर है कि 20 वीक्स पे वैसे भी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हो जाए। तो मांग लें ठीक। तो अच्छा है, बट एट 20 वीक्स, नॉट एट 25 वीक्स। ठीक है, सो गुड। अम्मी सो थैंक यू। पेन कितने दिन से बात करूंगा ये पैरा दर्द में फारिश वाली जी कोई अन्ना, ठीक है। एनीथिंग एल्स फरत? फरत का आदर भी थैंक यू ओके। थैंक यू सो थैंक यू मैम। you're welcome. सो एग्जामिनेशन के बाद आपने, सॉरी एक्सक्यूज मी, अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस इन्वेस्टिगेशंस वर आल्सो फाइन आई मैडम थिंक सो। आपने बेसलाइन सारी मांगी जी। मैडम एक क्वेश्चन है। मैडम ये जो नाइस गाइडलाइन में फुल पायर्स और फुल प्रेप्स प्रिडिक्शन मॉडल है, इसका क्या रोल है? और मैम इसकी कोई बात उसका करनी रोल चाहिए? है लेवल ऑफ केयर पे, आई थिंक सो, लेवल 1 2 3 केयर में अगर पढ़ लो तो अच्छा है। मैम When इसमें are you इसकी बात admitting? Where करनी are you चाहिए? admitting her? Is she in ICU? Is she, in जी? मैम एग्जाम में मतलब ये हम आपस में लड़कियां जब होती हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी जो है डिफिकल्ट वर्ड्स या डिफिकल्ट जो है बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो Exactly. एग्जामिनर ज्यादा हमें जो है। एग्जैक्टली, यू डोंट नीड टू मेंशन इट बिकॉज गाइडलाइन में मेंशन्ड है। वो भी इसलिए है कि आपको लेवल ऑफ केयर का पता हो। व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम फॉर एफसीपीएस, एवरीवन नोज कि यू आर अवेयर ऑफ द टर्शियरी केयर सिस्टम एंड यू आर वर्किंग इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड इंटेंसिव केयर यूनिट। लेवल 1 2 3 सारे आपके पास मौजूद है। बेसिकली गाइडलाइंस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी केयर करनी होती है, उन्होंने कम्युनिटी केयर करनी होती है, फिर उन्होंने टर्शरी केयर में भेजना होता है, उस लेवल पे डिवाइड करना होता है लेवल 1 2 3। बट अगेन एक नजर पड़ जाओ, इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल। बट इसमें हमारे, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करो, एक्सक्यूज मी, तो कंसिडरिंग हाइपरटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो आपको डिफरेंशिएट करना पता हो कि हाइपरटेंशन इज विद प्री इक्लेम्शिया और नॉट विद प्री इक्लेम्शिया। इट इज माइल्ड हाइपरटेंशन और सिवियर हाइपरटेंशन। And also, where are you admitting the patient? Like she is admitted in ward or in labor room, or she needs intensive care management, or she can be sent home. तो बेसिकली हमारे एग्जाम में एफसीपीएस के लिए तो हमें यही पता हो कि पेशेंट टर्शरी केयर में मैनेज होना है या घर पे मैनेज होना है। अगर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में मैनेज होना है तो वो वार्ड में रखना है, या वो लेबर रूम में, या वो आईसीयू में। सो ये चीजें आपको पता हो, ठीक है। मैम दूसरा वो प्रिडिक्ट द प्रीक्लेम्सिया जो प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो कैसे मैम हाँ, प्रिडिक्ट करता है प्रीक्लेम्सिया को? उसका जी, उसके अंदर ये इट्स आल्सो गुड क्राइटेरिया। वो कोई ब्लड टेस्ट होता है जो फ्रैंकली हम ना कराते हैं ना हमारे इधर होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट।
इंस्टेड हमारे लिए क्लिनिकल पिक्चर ही काफी होता है, वो प्रिडिक्ट करता है प्री इक्लेम्शिया को। इट्स नॉट एक्चुअली फॉर द सिवेरिटी ऑफ प्री इक्लेम्शिया। और जैसे कि हम यूरिन एल्ब्यूमिन या प्रोटीन ये क्रेटिनिन रेशो करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उससे रिलेटेड नहीं है। इट इट कैन प्रिडिक्ट के प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर हम ब्लड के अंदर कराते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इस पेशेंट में प्री इक्लेम्शिया या वो हो सकता है। बट इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट। मैं हमारे सेटअप में इन पाकिस्तान इन आर रिसोर्सेज हम सिर्फ वही टेस्ट कराते हैं पेशेंट्स में जो हमारी मैनेजमेंट में फर्क ला सके या हमारे डायग्नोसिस को बदल सके। इसलिए आपने जिंदगी में कभी इस टेस्ट की रिपोर्ट अपने हाथ में नहीं देखी, ना वार्ड्स में कभी हुआ, बिकॉज अननेसेसरीली इतना एक्सपेंसिव टेस्ट, बेशक हम फ्री भी करा रहे हो तो रिसोर्सेज तो यूज हो रहे हैं, तो वही हम कोई और बेहतर चीज उसकी करा लें, तो इसलिए हम वो कराते नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आपने वही बोलना है, वही करना है जो हम अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इन मैम चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं मैम होती। दूसरा ये सवाल है कि मैम प्री इक्लेम्सिया के डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ना कि जिसका ब्लड प्रेशर रेज्ड है और प्रोटीन यूरिया आ रहा है तो हम उसको लेबल करते हैं प्री इक्लेम्सिया। और मैम हम्म इसमें ये भी हमने पढ़ा है कि प्री इक्लेम्सिया उसमें भी हम कहेंगे जिसमें पेशेंट को रेज्ड ब्लड प्रेशर हो, भले उसमें प्रोटीन यूरिया ना हो पर उसमें सीवियर हेडेक हो या उसमें जो है सिम्टम्स हो ब्लरिंग ऑफ विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन या इसके अलावा कोई एबनॉर्मलिटी हेमाटोलॉजिकल या कोई बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज आ जाएं, सिर्फ ब्लड प्रेशर रेस्ट के साथ हम हम्म उसको भी प्रीक्लेम्सिया लेबल करते हैं। क्या ये सही है मैम? हम्म या ये मैम बहुत बेबी इंपॉर्टेंट में बात है। इट्स अ वेरी हम्म बेबी स्टिल बर्थ हो जाए या आईयूजीआर हो जाए, सिर्फ रेस्ड ब्लड प्रेशर के साथ हम उसको भी इट प्रीक्लेम्सिया इज लेबल वेरी करते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि प्रेजेंटली पेशेंट ने प्रेजेंट किया, ऑलवेज रिमेम्बर प्री एक्लेम्शिया इज अ सिंड्रोम। इट्स नॉट जस्ट वन एब्नॉर्मेलिटी और वन एंटिटी जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इट कैन बी इट इज अ सिंड्रोम जो दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट कैन बी हाई ब्लड प्रेशर विद प्रोटीनूरिया, इट कैन बी हाई ब्लड प्रेशर विद edema, it can be high blood pressure with edema and abnormal reflexes or vomiting and epigastric pain. It can be high blood pressure with IUGR and edema। और इनमें मैंने हर दफा प्रोटीन यूरिया नहीं बोला, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि प्री एक्लेम्शिया के अंदर आपको प्रोटीन यूरिया मिले। 5% के अंदर प्रोटीन यूरिया नहीं भी होता, बट वो क्योंकि सिंड्रोम के अंदर आ रहे होते हैं तो प्री एक्लेम्शिया लेवल होता है। सिमिलरली सेवेरिटी ऑफ प्री एक्लेम्शिया, severity of preeclampsia may be, it has to be the clinical assessment of the whole syndrome or of the whole the scenario जो कि हम करके लेबल करेंगे कि पेशेंट सिवियर प्री एक्लेम्शिया की तरफ जा रहा है या इमिनेंट एक्लेम्शिया। सिमिलरली इमिनेंट एक्लेम्शिया इज एक्चुअली अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सिवियर एक्लेम्शिया ऑल्सो। इमिनेंट एक्लेम्शिया का मतलब यह है कि बस अभी के अभी फिट पड़ने लगा है। सो उसके अंदर सिवियर प्री एक्लेम्शिया तो हो सकता है, यानी कि प्री एक्लेम्शिया और सिवियर हाइपरटेंशन है। But again, if you think that the symptoms are getting so worse, that the headache is not settling down, edema is increasing so rapidly, or there is, another clinical finding जो बहुत rapidly change हो रहा है, we label the patient as an imminent eclampsia. And then, of course, always remember management of imminent eclampsia and eclampsia is same। वो मैं आपको quickly बताती हूँ management वाली बात। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर मुख्ताबर। यस क्योंकि मैम, ये यस मैम, कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट यस मैम। ऑलवेज थिंक दैट पेशेंट हैविंग प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव इज pre-eclampsia। No, she may be having no protein urea, but many other clinical things which are making her under the diagnosis of pre-eclampsia, तो वो फिर वो pre-eclampsia लेबल होएगी। ठीक है, whether she is pregnant at the time she is presenting to you, or postpartum, या फिर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसने प्रेजेंट किया और आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखना चाह रहे हो कि प्री क्लेम्शिया तो नहीं था, तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रोटीन यूरिया ही था। उसमें भी क्लिनिकल फीचर्स वो बताएगी, ब्लड प्रेशर था, ये मुझे हो गया था, मुझे दाखिल किया था हॉस्पिटल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री क्लेम्शिया नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट हु इज हैविंग previous preeclampsia has high incidence of having many things in the future pregnancy as well as in life in future, right? जाहिर है जो प्री एक्लेम्शिया में रह चुका है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हाई ब्लड प्रेशर में रह चुका है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको कार्डियोवास्कुलर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने का ज्यादा चांस है
फ्यूचर इन लाइफ ऑल्सो, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो इसलिए इसकी हिस्ट्री भी लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियसली भी प्री एक्लेम्पटिक हिस्ट्री कैसे लेनी है। ओके, सो गुड, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये हमने एग्जामिनेशन तक बात कर ली थी। इन्वेस्टिगेशंस वी ऑल नो, मैं बार बार और बताती मैम हूँ। मैम इन्वेस्टिगे मैम एस्पायरिन की बात में भी जी, कंट्रोवर्शियल होता है। कभी किसी गाइडलाइन में लिखा होता है कि जो लोप्रिन है एस्पायरिन, वो हम कभी जो है देते हैं फ्रॉम 12 वीक्स से लेके 34 वीक तक। और कभी डायबिटीज वाली गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि बर्थ ऑफ एक्चुअली द आई बेबी विल तक टेल लेना यू, चाहिए है। अब जो लेटेस्ट स्टडीज है उसके अंदर तो लोप्रिन या एस्प्रिन 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी भी शुरू करा देते हैं, जिनके अंदर प्रीवियस कंफर्म्ड हिस्ट्री ऑफ सिवियर प्री एक्लेम्पशिया या PIH या IUGR है, उसमें बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन से भी लोप्रिन शुरू करा देते हैं। और आफ्टर कंसेप्शन डबल लोप्रिन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बहुत वैलिड और क्लियर हो चुका है। उसके अलावा यू शुड नो हाउ टू रूल आउट द क्लिनिकल असेसमेंट फॉर द APLS, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, राइट। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में तो हम जब पीरियड्स मिस हो गए उसके यानी 6 वीक से यू स्टार्ट इवन द क्लेक्सन, राइट। तो ये इस चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि एंटी कोएगुलेशन आपने एंटी कोएगुलेंट कब शुरू कराना है। ओके, सो गुड। सो कमिंग बैक टू इन्वेस्टिगेशंस का मैं बार बार बताती हूँ। फातिमा का सारा वाइवा इसलिए अच्छा गया एंड वी आर एबल टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस क्योंकि उसने अच्छा प्रेजेंट किया था, इसलिए हमारे टाइम भी बच गया और हम ये सारा कुछ भी डिस्कस कर सक रहे हैं और टॉपिक इंशाल्लाह होपफुली कवर हो जाएगा क्लास में। इसलिए आई वुड से कि हर दफा प्रिपेयर्ड आए क्लास में। बख्तावर 1 मिनट बस इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें, फिर आप मैनेजमेंट से पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं। सो मैं इन्वेस्टिगेशंस की बात आपसे करी थी। मैं इम्पोर्टेंट बात ये करना चाह रही थी कि हर टॉपिक की इन्वेस्टिगेशंस बेसलाइन तो आपके फिंगरटिप्स पे होनी ही चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस आपके फिंगरटिप्स पे होनी चाहिए, जो कि फातिमा के थी फिंगरटिप्स पे। वो इस तरीके से कि अगर हाइपरटेंशन है, कि बेसलाइन तो मांग ली, ब्लड ग्रुप, CBC, वायरल मार्कर्स, यूरिन कंप्लीट इंक्लूडिंग यूरिन एल्ब्यूमिन, एंड देन द ब्लड शुगर रैंडम, राइट। अगर आपने इसमें अच्छी बात है फातिमा ने GTT OGTT मांगा, उसकी वजह ये है क्योंकि एनी पेशेंट हु इज हैविंग हाइपरटेंशन आइदर PIH और chronic hypertension are more prone to have diabetes also because of the cardiovascular problem, so इस वजह से आप इसमें GTT मांग लो तो भी ठीक है। सो खैर बहरहाल, और उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में तो बिल्कुल ठीक है, आपने डेटिंग स्कैन मांग लिया, नकल थिकनेस का स्कैन मांग लिया, एनॉमली स्कैन मांगा, एनॉमली स्कैन के साथ 20 वीक्स पे अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर भी मांग लो तो बहुत अच्छा, और फिर रीसेंट स्कैन मांग लिया। उसके बाद जो रिकॉर्ड फॉर LFTs, RFT, सीरम यूरिक एसिड, और नॉट सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, LFTs, RFTs, सीरम यूरिक एसिड। और इस पेशेंट के अंदर तो मैं फंडोस्कोपी और देयर इज नो हार्म कि आप ECG का भी इमरजेंसी ब्लड प्रेशर उस वक्त क्या क्या देखने के लिए हद तक नहीं हो गया उस के आपको स्टार्ट या ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड का खराब करोगे। और बस आई थिंक दिस मच इज इनफ। और फिर यूरिन एल्ब्यूमिन पे डिपेंड करता है कि आपने क्वांटिफाई कैसे करना है। जी बख्तावर, मैडम मैं बख्तावर ने पूछ कोई रही क्वेश्चन थी। करना था। यस मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो ओलिगो यूरिया है उसमें हमें कभी कहते हैं कि मैम मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब अगर इंडिकेशन बन रही है तो पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट करना चाहिए। कभी कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमें जो है रिड्यूस करना चाहिए या मैग्नीशियम सल्फेट स्टॉप करना चाहिए। ऑलिव यूरिया तो फिर एक स्टोरी और है, यानी कि अब उसका यूरिन आउटपुट कम
adequate, it's better not to give magnesium excrete out होता है through urine. However, वो तो फिर एक कोई और ही बात है, मतलब renal abnormality without having chronic hypertension is rare. ठीक है, especially if she's not having any abruption or anything like that, तो उसमें renal होना बड़ी रेयर बात है, एक चीज। दूसरी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो? यस मैम, आवाज आ रही है मैम अभी। जी सॉरी, आई थिंक ये मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब आवाज आ रही है आपको? हम्म। जी। सो अब मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फातिमा ने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट बोली। देखो, जब भी आप इस तरह के पेशेंट की मैनेजमेंट बोलोगे, शी इज अ केस ऑफ, वी वुड से चलो प्री आईएच है, ठीक है, एंड हु हैज प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी। तो हमेशा जब आपने एग्जाम के अंदर इस चीज, जब आपको वासना है, प्लीज जस्ट लेट मी नो। आपने एग्जाम के अंदर हमेशा फौरन से ये बात करनी है कि कोई प्रॉब्लम। तो स्टार्ट ऑफ विद द इमरजेंसी मेजर्स, ठीक है, और उसी से start होंगे कि आई विल एडमिट हर इन द इमरजेंसी। और एक चीज ठीक कर लो, ठीक है, अच्छा। उसके इन द हॉस्पिटल, और जब भी आप मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी या किसी चीज की बात करो, तो सबसे पहले पेशेंट को भी और एग्जामिनर को भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसे ट्रीट किधर कर रहे हो। तो आपने उसको एडमिट किया, एक्सक्यूज मी, और उसको बिल्कुल गाइडलाइन की तरह आपने लेकर चलना है। पहले आपने उसको एडमिट करके, बिकॉज ये एक इमरजेंसी केस है, 16110 अगर इसका बीपी है और आपने उसको रिसीव ऐसे किया, तो आपने उसको उसी तरह बोलना है कि मैंने उसे इमरजेंसी। जो भी आप इमीडिएट इमरजेंसी मेजर करते हो उस तरह के पेशेंट की,
सो सॉरी, मेरा तो पता नहीं इंटरनेट का क्या मसला हो गया। सो आई वाज सेइंग कि जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है अब आप लोगों को? यस अच्छा। मैडम, आ रही है। सो मैनेजमेंट में आपको बता रही थी। ठीक है। सो आपने फिर उसके बाद जब इमरजेंसी मेजर्स कर ली तो आपने उसका फिर काउंसलिंग करनी है पेशेंट और अटेंडेंट की अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन टू मदर और फीटस। हम नॉर्मली फीटल कॉम्प्लिकेशंस पहले बोल लेते हैं क्योंकि मैटरनल बहुत लंबी होती है और मॉनिटरिंग भी लंबी होती है। वो फातिमा ने अच्छी बोली कि उसने शुरू में ही IUGR, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, IUD वो बता दिया। और उसके बाद आपने जो है क्या उसे कहते हैं फिर मिटरनल कॉम्प्लिकेशंस। मिटरनल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर यस, बेहतर होता है कि जो ज्यादा कॉमन हो वो पहले बोली जाए, जिसके अंदर एब्रप्शन है, सिवियर प्री क्लेम्शिया है, क्लेम्शिया है, और सेरेब्रल हेमरेज, राइट। तो आपने ये सारा बोल देना है। उसके बाद आप उसका एक पहले थोड़ा सा क्विकली एक मैप, माइंड मैप जिसको कहते हैं ना, वो एग्जामिनर को अगर दे दो ताकि टाइम अगर कम भी है तो उसे आइडिया हो जाए कि यू नो एग्जैक्टली कि क्या आप कहना चाह रहे हो। उसमें आ जाएगा कि आप उसको पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस बता के विल कीप हर एडमिटेड टिल हर ब्लड प्रेशर बिकम्स नॉर्मल विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करोगे। अगर उसके साथ कोई एडेड प्रॉब्लम है जैसे कि उसको नीमिया हो या UTI हो या कुछ हो, आप वो से सॉल्व करोगे। और यू विल ट्राई टू टेक प्रेगनेंसी नियर टर्म कीपिंग मदर एंड फीटस बोथ स्टेबल और बट विद स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग। ठीक है। उसके बाद आप इस माइंड मैप या एम ऑफ मैनेजमेंट का पूरा एक प्लान पूरा बोलोगे जो कि एक डिटेल्ड होगा जैसे कि फातिमा ने बोला था, जिसके अंदर आप काउंसलिंग आप कर चुके हो, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन बता चुके हो। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी तरीके से बोलनी है जैसे कि हमें गाइडलाइन में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। You are admitting the patient. Where are you admitting the patient? Number two, when are you starting the treatment? IV ट्रीटमेंट दे रहे हो, ओरल ट्रीटमेंट कब शुरू कर रहे हो, कौन सी दे वो दोगे। उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर कितना फ्रीक्वेंटली चेक करोगे। इफ शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ऑब्वियसली शी इज हियर विद सिवियर हाइपरटेंशन, और इसमें तो खैर प्री एक्लेम्शिया भी है। तो अगर सिवियर हाइपरटेंशन है विद प्री एक्लेम्शिया तो हर 15 मिनट के बाद हम इसका BP चेक करेंगे। और एंड व्हाट इज योर टारगेट ब्लड प्रेशर? योर टारगेट ब्लड प्रेशर इज 135/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये बातें इसी तरह ही बोलनी आई। वेन एवर यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन यू हैव टू टेल योर टारगेट ब्लड प्रेशर। जैसे हम एनीमिया के अंदर करते हैं, जब हम एनीमिया का तो हमारा टारगेट एचबी क्या है, सो इसी तरह आपका टारगेट ब्लड प्रेशर क्या है वो बोलना है। उसके बाद कितना फ्रीक्वेंटली आपने उसका यूरिन एल्ब्यूमिन कराना है। यूरिन एल्ब्यूमिन उसका अगर जिस भी तरीके से करा लो आप उसका वो कोई यूरिन स्पॉट टेस्ट करते हैं, कुछ लोग इसका जो आपके डिपार्टमेंट में होता है जो आप करते आए हो वो करोगे। और जो सिवियर हाइपरटेंशन है या प्री एक्लेम्शिया विद हाइपरटेंशन है उसको तो डेली हम यूरिन एल्ब्यूमिन करेंगे, स्पेशली इफ शी इज इन द हॉस्पिटल। इफ शी has been discharged, like for example her blood pressure is now controlled but she is a case of pre-eclampsia even now, तो फिर हम उसका यूरिन एल्ब्यूमिन करते हैं वंस अ वीक और वेन एवर इट इज नीडेड। यानी कि हाइपरटेंशन उसकी कंट्रोल हो गई है बट अगर उसका यूरिन एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, माइल्ड की फॉर्म में ही है, या फिर उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे जैसे एडीमा वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो फिर यूरिन एल्ब्यूमिन हर वक्त रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो यूरिन एल्ब्यूमिन आपने प्री एक्लेम्शिया विद माइल्ड हाइपरटेंशन में आप बार बार रिपीट नहीं करोगे। लेकिन इफ शी इज हैविंग सिवियर हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्शिया, और इवन इफ नो प्री एक्लेम्शिया विद सिवियर हाइपरटेंशन, तो आप डेली यूरिन एल्ब्यूमिन करते हो। उसके बाद उसकी लैब, स्पेसिफिक लैब्स यानी LFTs, RFTs, सीरम यूरिक एसिड आप कब कब करोगे। अब पेशेंट विद प्री एक्लेम्शिया एंड सिवियर हाइपरटेंशन उसकी आप 3 टाइम्स अ वीक करोगे। ठीक है। अगर वो सिवियर हाइपरटेंशन उसकी ठीक हो जाती है तो फिर 2 टाइम्स अ वीक करेंगे। और सिमिलरली अगर वो विदाउट प्री एक्लेम्शिया सिवियर हाइपरटेंशन है तो ट्वाइस अ वीक है। और अगर वो जो है सिर्फ माइल्ड हाइपरटेंशन है और नो प्री एक्लेम्शिया तो उसकी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन है और फिर व्हेन नीडेड, राइट। तो बार बार उसकी लैब्स नहीं रिपीट करते। सो ये आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि आपने कब क्या करना है। सो फीटल मॉनिटरिंग तो डेफिनेटली इस पेशेंट में तो खैर CTG नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर आप रिसेंट स्कैन जरूर करोगे। फिर आप बिकॉज शी हैज प्रेजेंटेड विद प्री एक्लेम्शिया वेयर हाइपरटेंशन, तो इसके अंदर तो फिर आप एवरी 2 वीक स्कैन करोगे।
जो डॉक्टर फातिमा थी दिया इधर थोड़ा सा उन्होंने ब्लंडर कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं ट्वाइस अ वीक डॉपलर करूंगी। डॉपलर ट्वाइस अ वीक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आप पहले उसका 2 वीकली स्कैन करते टू सी द ग्रोथ पैटर्न। उसका अगर आईयूजीआर डेवलप होगा तो डॉपलर करेंगे, वरना हम इसका 28 वीक्स पे डॉपलर करेंगे। और अगर तो डॉपलर में प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम वीकली डॉपलर करेंगे। ट्वाइस अ वीक डॉपलर तो कहीं है नहीं, और ग्रोथ स्कैन 2 वीकली होता है। मैडम तो इस चीज मैं को कहना थोड़ा सा चाह रही थी कि 2 वीक मतलब 2 वीक बाद डॉपलर करवाएंगे 28 अच्छा, वीक हमें से। लगा ट्वाइस, मुझे समझ आया कि ट्वाइस अ वीक बोला नहीं है। मैडम मैंने तो गलत ये बोला सारी है। चीजें बोलने में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक थी, बट ये बहुत छोटी मिस्टेक्स थी। जैसे शायद आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस कब कब कराई उसमें थोड़ा मसला था, या ब्लड प्रेशर कब कब चेक किया है कुछ तो। बट ओवरऑल इट वाज गुड बिकॉज यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइन और वो पैटर्न। और फिर हाउ आर यू गोइंग टू टेक हर टिल टर्म, व्हेन आर यू डिस्चार्जिंग द पेशेंट, इफ योर टारगेट ब्लड प्रेशर हैज बीन अचीव्ड और वो ठीक है तो यू कैन सेंड हर होम विद मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स। जैसे अगर हम मंथली पेशेंट्स को बुलाते हैं तो इस पेशेंट को हम 2 वीकली बुला लेंगे इस स्टेज पे, with all the tests और obviously explaining to her all the warning signs, जैसे कि फातिमा ने भी बोले कि उसको उससे। और वार्निंग साइंस जब बताना शुरू करेंगे तो हम हिस्ट्री से बताना शुरू करेंगे, यानी कि उसको हेडेक, विजन या एडिमा बहुत सिवियर फील हो, या पिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग फील हो बहुत ज्यादा, तो फौरन प्रेजेंट करे। या उसको लगे कि उसको पेट में बहुत सिवियर दर्द या ब्लीडिंग, इब्रप्शन के साइंस, तो प्रेजेंट करे। और ब्लड प्रेशर चेक करा रही है तो जब उसका ज्यादा लगे तो प्रेजेंट करे, जो हमारे टारगेट ब्लड प्रेशर से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर है। और उसके अलावा ये कि इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से हमने उसको बुला लेना है। अगर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो तो खैर हॉस्पिटल में होते हुए हम कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन अदरवाइज ये है कि अगर वो पेशेंट माइल्ड हाइपरटेंशन वाले केस में चली गई है तो फिर हम उसको, इफ शी इज हैविंग नो प्री एक्लेम्पशिया माइल्ड हाइपरटेंशन, तो 2 वीकली बुलाएंगे इस स्टेज पे। और अगर वो प्री एक्लेम्पशिया विद हाइपरटेंशन है तो उसे वीकली बुलाएंगे, जिसके अंदर उसकी जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो ट्वाइस अ वीक वो करा रही होगी। सो बिकॉज उसका प्री एक्लेम्पशिया पॉजिटिव आया था। तो इस तरीके से आप चलोगे। इवन इन फ्यू केसेस कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इवन प्रीक्लेम्शिया है और माइल्ड हाइपरटेंशन भी है तो यू कैन कीप हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आल्सो। तो ये आप बिल्कुल इस चीज को भी देख लो। और फिर उसके बाद यू टेक हर टू टर्म, बिल्कुल इसी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए। और जिस तरह एक्सक्यूज मी, जिस तरह फातिमा ने बताया था कि वी टेक हर टू 37 वीक्स। और उस वक्त फिर हम, इफ एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, वैसे तो इट इज वेरी अनयूजुअल और लेस लाइकली कि इतने हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसने प्रेजेंट किया था। और उसका +2 प्रोटीन यूरिया था, तो वो 37 वीक्स तक वो कुछ कुछ और उसको होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप यू टेक हर टू टर्म, और फिर 37 वीक्स पे आप उसको डिसाइड कर लोगे। और अभी तक किसी ने कुछ ऐड करना है या कोई क्वेश्चन तो बताएं। मैम जी, मैम इससे देंगे, इंडक्शन दे सकते हैं इस पेशेंट को, इंडक्शन ऑफ लेबर दे सकते हैं मैम 37 वीक्स। इंडक्शन ऑफ लेबर देंगे, व्हाई नॉट। अगर देर इज नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल इंडक्शन ऑफ लेबर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रायल ऑफ लेबर उसको देंगे। अगर कोई पेशेंट इमिनेंट एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया के साथ प्रेजेंट करता है तो हमारा टारगेट होता है कि विद इन 5 to 6 आवर्स शी शुड बी डिलीवर्ड, नंबर वन। तो उसमें भी डायरेक्ट सिजेरियन की भी कई दफा जरूरत नहीं होती है। आपने उसका एक्लेम्पशिया कंट्रोल कर लिया, यू कैन इंड्यूस हर देयर एंड देयर, यू डू द पीवी, यू डू द बिशप स्कोरिंग। इफ बिशप इज गुड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। इसमें आप किस तरीके से बोलते हो एट 37 वीक्स, हाउ आर यू यू नो एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट about the mode of delivery. Before anything else, you do the abdominal examination and you do the bishop. Always remember, whenever you are talking in terms of changing the gestational age of the patient, like patient presented 25 weeks, now you're talking that she has at 36 weeks or 37 weeks, you have to start right from the history again quickly. Okay, I would like to reassess the patient regarding her symptoms, which include this, like headache, vision, ye. I would like to do examination to reassess the size of the baby, presentation or wo sara kuch, to rule out any contraindication for cesarean section. I would like to do a pelvic examination to do the pelvimetry as well as to do the bishop scoring. If bishop is good, then
which means that the cervix is ripe, which means that I can give her directly syntocinon. And if cervix is not ripe, or if the bishop is not good, then I will induce her with glandin. This is how you are going to talk in exam also, right? Exactly ये statements. इसी तरह अगर पेशेंट eclampsia के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, she has got मोस्टली eclampsia, imminent eclampsia, severe pre-eclampsia. इन पेशेंट्स के बिशप कुछ अल्लाह की तरफ से बाय नेचर समटाइम्स हेल्प्स ह्यूमंस, वो ऐसे केस में मदर को जल्दी फारिग कराने की कोशिश करता है. नेचर इज ट्राइंग टू सेव मदर्स लाइफ, राइट? सो बिशप आपको मोस्टली अच्छा ही मिलता है. इफ यू डू बिशप स्कोरिंग ऑफ अ पेशेंट हु इज हैविंग eclampsia even at 34 weeks, you will find out that she is having good bishop. Sometimes she is already 2 centimeters, और sometimes the cervix is phased, तो उसमें तो डायरेक्ट सिंटोसिनॉल लगा के अगले 2-3 घंटों में डिलीवरी हो जाती है. Similarly, if you think that a bishop is bad, but she's having previous normal deliveries, and you think that she can deliver in less than 4-5 hours, in eclampsia, you can induce her. But again, you cannot delay delivery in eclampsia or imminent eclampsia beyond 4-5-6 hours, because it can cause, even maternal mortality. Eclampsia के अंदर maternal mortality का भी incidence है, which is not very less. I think it's more than 10% or so. So ऐसे केस में आप बिल्कुल रिस्क नहीं फिर लेते हो, फिर you can do cesarean section. So PIH, eclampsia, imminent eclampsia, severe preeclampsia, these are not absolute contraindications for normal delivery. आप इसमें इंडक्शन भी करते हो, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू मदर्स कंडीशन आप सिजेरियन का भी प्लान कर सकते हो, बट इसमें डिलीवरी हो सकती है अगर देर इज नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी. ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम ये क्वेश्चन है कि जैसे सीवियर हाइपरटेंशन है या प्री इक्लेम्शिया है, इसमें हम जस्ट मेंशन कर दें कि आई विल स्टार्ट द एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट फ्रॉम द IV लिबिचिलोन, या इसके मजीद हम लोग डोजेज भी बता दें एग्जाम में? डोजेस बतानी है आपने. जो केस है उसकी तो डोजेस बतानी है ना. हाँ, अनीमिया है साथ में, यूटीआई है, तो आप कह सकते हैं आई विल ट्रीट यूटीआई, आई विल ट्रीट अनीमिया, जब तक एग्जामिनर रोक के ना कहे कि उसके लिए क्या करोगे. बट अगर इसके अंदर केस ही हाइपरटेंशन का है, तो इसमें तो आपको डोजेस बोलनी है. हाइड्रोलाजीन है, किस तरह से देना है, कितने mg देना है, 15 मिनट के बाद कितने mg देना है, फिर किस तरह मॉनिटरिंग करनी है. मैग्नीशियम सल्फेट है, उसकी लोडिंग या मेंटेनेंस डोज कैसे देनी है, लिबिटलॉल की डोज कैसे देनी है, पोस्टपार्टम में आपने मिथाइल डोपा बंद करके दूसरी मेडिसिन किस तरह से स्टार्ट करनी है, वो सारा कुछ आपने बिल्कुल बोलना है. पोस्टपार्टम में फर्स्ट 48 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जी अगर फातिमा है तो क्विकली पोस्टपार्टम मैनेजमेंट में बोल दे, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी. जी जी मैडम. मैडम पोस्टमार्टम ना डिलीवरी के मतलब पोस्टमार्टम मैडम बताओ ना मैडम. उसके बाद ना हम जी बीपी ना पेशेंट का ना 4 आवरली हम हाफ आवरली बीपी मॉनिटर करेंगे. उसके बाद 4 आवरली टिल 24 आवर्स तक करेंगे. फिर 6 आवरली टू 48 आवर्स तक बीपी करेंगे, क्योंकि मैडम 40% चांस होते हैं कि वो प्री इक्लेम्शिया में बाद में जा सकती है which is पोस्टमार्टम. very high, so postpartum period is very very important, especially first 48 hours. 48 to 72 hours important होते हैं. तो especially severe preeclampsia, severe hypertension वाले में तो you keep her in the hospital and you do the monitoring in the same way. Yes. और ये सारा कुछ गाइडलाइन में है, नाइस की गाइडलाइन में बहुत जबरदस्त मॉनिटरिंग किस तरह लेके चल रहा है अपने फिंगर टिप्स पे कर ले, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह. और मैडम ठीक है. साथ ही हमने लैब्स रिपीट करवानी है, उसके बाद RFTs LFTs और CBC को रिपीट करानी है. अगर नॉर्मल है तो उसके बाद हमें रिपीट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जब तक नॉर्मल नहीं है तब तक हम रिपीट कराते रहेंगे 24 डेफिनेटली. से 48 के बाद. बिल्कुल ठीक है, और हम जबरदस्त. मैडम पेशेंट को 2 वीकली, जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाएगी तो डिस्चार्ज करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव पे. फिर वो 1 to 2 वीकली हमारे पास विजिट करेगी, और उसके बाद नेक्स्ट यानी उसने 6 वीक बाद विजिट करना है. उसके बाद हम उसके यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन देखेंगे. अगर नॉर्मल है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर हमने 3 मंथ बाद दोबारा से रिपीट कराना है. अगर RFT इसके नॉर्मल आ जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते तो फिर हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे कि रूल आउट एनी अदर मेडिकल वेरी डिसऑर्डर. गुड. बिल्कुल मैम एक क्वेश्चन है. पेड है तो वो टॉपिक मैक्सिमम कवर हो जाता है. सो गुड. किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें, फिर क्लास मैडम हमारी मेरा खत्म हो क्वेश्चन है. जाएगी. मैडम मेरा क्वेश्चन है. हम्म. मुझे ये पूछना था कि जब जी मैम प्री इक्लैम्प्टिक पेशेंट है पोस्ट डिलीवरी, चाहे सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी, और अब हम पेशेंट इज ऑन एंटी हाइपरटेंसिव,
और सेकंड डे पर या इवन फर्स्ट डे पर पेशेंट इज वेल कंट्रोल्ड ऑन ओरल एंटी हाइपरटेंसिव, तो उस एंटी हाइपरटेंसिव को बंद कब करते हैं? जब ठीक है आपका ब्लड प्रेशर ज्यादातर केसेस में 130/85 से नीचे रहना लग जाए, तो यू टेपर ऑफ द मेडिसिन और यू कैन स्टॉप द मेडिसिन. मैम, स्टॉप द मेडिसिन एंड डिस्चार्ज हर एंड नो, यू डिस्चार्ज हर बिफोर स्टॉपिंग द मेडिसिन. इतना जल्दी 48 आवर्स में कई दफा नहीं भी होता, स्पेशली सिवियर प्री क्लेम्शिया या सिवियर हाइपरटेंशन के केसेस में हफ्ता 2 हफ्ते बाद जाके उसका बीपी बिल्कुल ठीक रहने लग जाता है. और जब बिलो 130/80 रहने लग जाए, तो यू कैन स्टॉप द मेडिसिन. मोस्टली आफ्टर 2 वीक्स यू नीड टू स्टॉप द मेडिसिन. यानी और जब हम अगर इसको एंड तक, डिस्चार्ज करें, सॉरी सॉरी आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी कि आफ्टर इवन शी सेंट होम, patient is told to monitor her blood pressure. If she was a case of mild hypertension or mild preeclampsia, तो फिर twice a week भी वो blood pressure check करती रहे and keep on taking the antihypertensives and she presents to you after 2 weeks. अगर उसका बीपी का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, you can stop the medicine and tell her to keep on monitoring the blood pressure. और वो ठीक रहता है तो well and good. और अगर पेशेंट का बीपी विद मेडिसिन 135/85 या इससे ऊपर रहता है, देन यू कंटिन्यू द मेडिसिन. और जैसे फरहत ने कहा कि अगर 3 मंथ्स तक भी रहता है तो यू रेफर टू नेफ्रोलॉजिस्ट और द फिजिशियन. ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच मैम। मगर ये बात लिखी हुई है गाइडलाइन में, मैं इस बात हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, बट वी हैव नो लिखिए, ग्राउंड्स टू गौर से डिफेंड पढ़ो. इसको। नहीं नहीं, व्हेन टू स्टॉप भी लिखा है, जरा गौर से पढ़ना. लिखी ठीक है मैडम, गाइडलाइन में ही है. ठीक ठीक है. है मैडम, चल, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। यू वेलकम. चलें, ग्रेट. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे